Good evening, everyone. Uh, Today, I am going to tell you the most important part of the most important strategy of the mains examination. That is how to relate the number of words with marks and with the time you have, and how to complete your paper qualitatively, means the best possible manner. This strategy is most important among all of the strategies which we are going to apply and in our test series and subsequently in the UPSC examination. And today, whatever I'm telling you, nobody will have ever told you, and nobody will be actually telling you. I have applied this strategy in my examination also, because of which I got 4 interview calls, as well as most of the students, not most, all students of mine are applying this. And you know the rank, Rahul, 10th rank, and so many ranks in so many years, right? They have got this, and they've always appreciated this strategy, है ना? And they always told me कि सर ये स्ट्रेटजी लगाया हूँ और इसी से मेरे नंबर आए। एंड नोबडी एवर टोल्ड मी कि सर ये स्ट्रेटजी लगाने से पेपर छूट जाता है। किसी का पेपर नहीं छूटता, नोबडी, मतलब किसी का पेपर इस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं छूटेगा, अदरवाइज छूट जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, this strategy will help you to score, मतलब with the same level of knowledge and information, you will be scoring more than 50, 60, 70 marks with the same level of content in the examination. मतलब अगर आपके 350 नंबर के लायक आंसर लिखा है और you have applied this strategy, you will get 410, 420, 50, 60, 70 marks depending on the content. You'll get more marks. So this is the best part of the strategy, is that it will always increase your marks provided you follow it in the right manner. ठीक है, so हम डिस्कस करेंगे वो तो पूरी strategy. Let's let's start the discussion with the first question, that how many of you who have written mains have uh, actually written the answer in the examination in the serial order, यानी क्वेश्चन 1 से 20 तक, this way one way, otherwise 11 से 20 and then 1 to 10. ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह से आंसर लिखा है? अच्छा, 2 हुए। 11 20 1 to 10, 11 20 1 to 10, okay. Then 1 to 20, Vijay Kumar. So you've written mains, all of you. How many of you got the interview call with the same strategy? कितनों कॉल आया इंटरव्यू कॉल? एनीवन? किसी का नहीं आया? Nobody have got the call. सौरभ, महिमा and सार्थक, you okay? You both of you got the call. ठीक है, देखिए see, 1 to, you're writing question 1 to 10 or 1 to 20 or 11 to 20 and then 1 to 10. ठीक है, this strategy most of 90% of the candidates will follow this strategy, या 80% of the candidates. ठीक है, few only will deviate from the strategy and they will design their own strategy and they will write the answer. Okay, ठीक है सौरभ, नो प्रॉब्लम, है ना? I'll discuss the strategy, then you apply the strategy और आप फिर आप बताना कि क्वेश्चन छूटा कि नहीं. Okay, so first of all, let me tell you that, for example, consider that कि you from the question 1 to 10 or 11 to 20, whatever, you have 10 marker, 15 marker, and you are giving the time as per the requirement of the question. That means somebody might be giving the, like for example, 10 marker question 7 minutes, 6 to 7, whatever, and then 15 marker maybe 11 to 12, right or not? इतना टाइम देते थे हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में, इफ यू आर राइटिंग इन दैट सीरियल ऑर्डर, राइट और रॉन्ग? ओके, राइट, ठीक है. सो दैट मीन्स द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट वे, दैट मीन्स अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी का ऑप्शन ज्योग्राफी है, सो ही माइट बी वेरी वेरी गुड इन GS1 ज्योग्राफी पार्ट. सो ज्योग्राफी क्वेश्चन जो जो आपको आते हैं बेस्ट वे में, देयर मे बी 15 मार्कर, यू आर गिविंग 12 minutes, 12-13 minutes, and those questions of history or maybe some culture questions which you're not much aware, still you are giving 10 to 12 or maybe 11 to 12 minutes, right? 15 मार्कर में 10 से 12 मिनट आप दे रहे हो वही क्वेश्चन में जो आता है, और जो नहीं आता उसमें भी वही दे रहे हो, राइट? बट यू आर गेटिंग डिफरेंट मार्क्स.
बिकॉज जो आता है बेस्ट, मान लीजिए आपको बहुत अच्छा आता है 15 मार्कर, यू कैन राइट मोर, बट यूर राइटिंग जो भी टाइम आपने लिमिट किया है 12 मिनट, तो राइटिंग वट एवर इन 12 मिनट्स एंड यूर गेटिंग मे बी आउट ऑफ 15 यूर गेटिंग 7 और 8 मार्क्स, ठीक है, 50%, 80 तक मिलेगा, ठीक है। बट हियर you know very well, no, so आपको नहीं आता मान ली कल्चर एंड ऑल, but still you have to spend some 11 to 12 minutes and you're writing something which is very general or very bogus or very, very very much similar type of items, and there also you are going to spend very less time, right? So therefore आप उसमें कम टाइम दे रहे हैं, then also you're getting, sorry, कम टाइम नहीं दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं 11 to 12 minutes, but you are getting lesser marks. Lesser marks means 4 marks, 3 marks, because content is not good, more generalized answer, more weak answer, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये आपको बहुत पेनलाइज करती है एवरी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में पेनलाइज करती है, आपके लेस नंबर होते हैं, ओवरऑल आपके बहुत अच्छा नॉलेज होगा तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है, शायद सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन आप उससे ज्यादा स्कोर कर सकते थे, लेकिन आपने वो स्ट्रेटजी नहीं फॉलो किया, यू हैव फॉलोड दिस स्ट्रेटजी, द सीरियल ऑर्डर स्ट्रेटजी, कि सीरियल ऑर्डर करेंगे और वो टाइम रिक्वायरमेंट है वो फिक्स कर लिया हर क्वेश्चन में, वेदर यू नो इट और वेदर यू डू नॉट नो इट, but you are giving the same amount of time in all the questions, in spite of the fact that you are getting different marks in different questions, because you know in every question differently, but your time is same. So आपका क्या लॉस है, टाइम सेम है बट मार्क्स डिफरेंट है, बिकॉज यू नो किसी में ज्यादा पता है किसी में कम पता है। सो लॉस क्या हुआ, जिसमें ज्यादा पता है यू हैवंट वर्कड मोर टू अर्न मोर मार्क्स, जिसमें आप 8 नंबर लाए हो बहुत अच्छा आंसर लिखने पे, बट टाइम कम दिया क्योंकि 11-12 मिनट्स था, मे बी लास्ट क्वेश्चन था, मे बी लास्ट 3 क्वेश्चन 18-19-20 यू नो वेरी वेल, बट इन द एंड यू आर गोइंग टू यू अटेम्प्ट, हमेशा ही टाइम का इशू रहेगा लास्ट में, ऑल क्वेश्चंस विल उसका टाइम लिमिट, टाइम बहुत कम हो जाए, लास्ट होता है 10-15-20 मिनट्स आर देयर एंड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आर देयर, तो आपको 10 मिनट या उससे कम देना पड़ेगा 50 मार्कर में, एज ए रिजल्ट योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ गोज डिक्रीजिंग इन द लास्ट 3-4 क्वेश्चंस, बट उनको आपको बेस्ट आता है, पर यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर और मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द बेस्ट वे, बिकॉज टाइम इज लेस, जब टाइम कम है तो नंबर नहीं आ पा रहे हैं उसमें। तो रीजन इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी सिंपल रीजन, कि आपको बराबर टाइम क्यों देना जब बराबर नंबर नहीं है। जब मेरे को 4 नंबर या 3 नंबर मिल रहे किसी क्वेश्चन में, और किसी क्वेश्चन में आई एम गेटिंग 8 marks and I can score 10 marks also with giving the same time, so why should I give more time to unknown question and lesser time, or the exact that much time only which I have fixed for more known questions. तो यहाँ ओवरऑल यू विल बी इन द लॉस, ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो अच्छे क्वेश्चनों में कम टाइम देने की वजह से आपके नंबर उसमें कम मिले, हाउएवर आपको ज्यादा आता था तो, लेकिन उसके हिसाब से ज्यादा है पर ओवरऑल कम है ना, बट इन द लेसन नोन क्वेश्चंस वेदर यू हैव गिवन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स आपको उतना ही आता है, द सेम थिंग आता है, वही आप रिपीट कर रहे हो, जनरलाइज कर रहे हो, मार्क्स विल बी हार्डली मैटर, उसमें 2 नंबर मिलना था 3 मिलेगा, या 3 मिलना था 3.5 मिलेगा, मार्क्स उसमें नहीं बढ़ेगा, पर मार्क्स जहां बढ़ना चाहिए था वहां नहीं बढ़ा बिकॉज ऑफ टाइम इशू। ओके, तो ये क्लियर है। सो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सी द स्ट्रेटजी इज यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम बेस्ट पॉसिबल मैनर टू लीस्ट पॉसिबल, दैट मींस बेस्ट नोन क्वेश्चंस टू लेसर नोन क्वेश्चंस, दिस इज द ऑर्डर। सी वेरी सिंपल है ये स्ट्रेटजी, this is not a new strategy which you are going to follow. When you are in the school or colleges, or when you are in the school, your parents have already told कि बेटा स्कूल में क्लास 4 में 5 में बेटा जो जो आता हो पहले वो करना, फिर जो नहीं आता उसको करना, ठीक है, ये वही स्ट्रेटजी है, जो जो आता है पहले उसको करना और जो नहीं आता उसको बाद में करना, जो बहुत कम आता है उसको लास्ट में करना। बट while preparing for the UPSC you have forgot this basic simple rule given by your parents itself themselves, ठीक है, you have forgotten those simple rules and you are doing your own way of in the serial order। कौन बताया serial order लिखने में, यूजलेस, कोई बताया भी नहीं है लेकिन सब फॉलो कर रहा है, या किसी कोचिंग ने बताया होगा कि गिव द इक्वल टाइम ऑफ वर्ड लिमिट, एंड वर्ड लिमिट की बात करते हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट वर्ड लिमिट टू 150 वर्ड लिमिट 250 वर्ड लिमिट, अरे
First of all, who is going to count the words? First thing. Second thing is, do you think that examiner is going to count the word? Nahi, nobody is going to count the word. First, word limit is automatically controlled by number of word limit is automatically controlled by number of pages you have and the time you have. टाइम आपका वही फिक्स है 12-13 मिनट और पेज भी फिक्स है 3 मिनट 15 मार्कर में 3 पेज एंड 10 मार्कर में 2 पेजेस. सो वर्ड लिमिट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी फिक्स कंट्रोल्ड है. वेयर इज द, कहाँ कंट्रोल नहीं है? टाइम लिमिट कंट्रोल्ड है, वर्ड लिमिट कंट्रोल है और पेज लिमिट भी तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल है. सो देयर इज नो वे दैट पीपल विल टेल यू. तो कोचिंग वाले तो क्या बोलते हैं कि इसमें आपको 250 वर्ड लिखना है. अरे 250 वर्ड तो अपने आप लिख उठेगा, वर्ड्स की तो बात ही नहीं करना है. बात करना है कि कितना मिनट में लिखना है. दिस इज द थिंग, कितने मिनट में लिखना है. वर्ड लिमिट तो कंट्रोल्ड है अपने आप ही. और बोगस लिखोगे तो वो कोई फायदा नहीं है. बोगस मींस यूजलेस और जनरलाइज्ड और आलतू फालतू चीजें लिख रहे हो, उसका तो कोई यूज नहीं है. वैसे ही नंबर नहीं मिलने हैं, whether you waste your time or you do not waste your time. ओके, इतना क्लियर है सबको ना? अब आगे बढ़ते हैं. सो द राइट वे, तो राइट वे क्या है कि एकदम राइट वे ये है कि फर्स्ट यू नो दैट विच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, द बेस्ट टू वर्स्ट. ठीक है, ऐसे करेंगे. कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा तो ऑप्शन ज्योग्राफी था. आई हैड ज्योग्राफी इन यूपीएससी. किसी का होगा पॉल साइंस होगा, मे बी किसी का हिस्ट्री होगा, और मे बी आपका किसी का पॉलिटी, कुछ भी हो सकता है. किसी का, या किसी का कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, किसी का हिस्ट्री, किसी का पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है. तो कंसिडरिंग टेक सम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में GS1 की अगर हम बात करते हैं, सो इन दैट ज्योग्राफी इज देयर and I have the option of geography. तो मेरा क्या है, my the best, strongest or my strength is geography, followed by maybe I love modern India, then followed by I love maybe society part, या फिर maybe culture. ठीक है. So first of all you know your own strength. So everybody have different strength. Not everybody has this geography. कोई ज्योग्राफी में अच्छा, कोई हिस्ट्री में, कोई पॉलिटी, या कोई और GS2 की बात करें तो कोई पॉलिटी में अच्छा है, फिर GS3, ऐसे करके देयर आर वेरियस वेज. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. This example will help you and then you can use this in all papers. ठीक है, including your optional also. So for example मेरा geography है. I know that the geography questions जो आते हैं they are maybe at 16, 17, 18, 19 और 20 इसमें होंगे. Just I'm taking example. और यहाँ कुछ होंगे 15 marker, some 10 marker will also be there. 10 marker maybe 8, 9, 10. ठीक है. So I have around 6 questions, considering 6 questions, 3 10 marker और 3 15 marker. So क्या करते हैं? अच्छा, एक तरीका क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स है ना, जिन लोगों को नहीं निकलना एग्जाम में, या मतलब जिनको स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में. ठीक है, सबको बांट दिया गया 5 मिनट पहले ही, और 5 मिनट्स के पहले बांट के दे आर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. और 5 मिनट कहीं कहीं बांटा जाता है, कहीं नहीं, कहीं तो लास्ट मोमेंट पे यू गेट. तो दे विल रीड फर्स्ट, पूरा पूरा पढ़ लेंगे, कुछ कुछ सोच भी लेंगे. दे विल वेस्ट अराउंड 7 to 8 मिनट्स. 5 मिनट्स तो ऐसे ही वेस्ट करेंगे. 7 to 8 मिनट्स होगा, देन दे विल थिंक अब कौन सा स्टार्ट करें. तो फिर कोई क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जब तक वो स्टार्ट करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, तब तक 2 मिनट और निकल जाएगा. 10 मिनट्स हो गए, नो क्वेश्चन दे हैव स्टार्टेड येट. मतलब 10 मिनट निकल जाने पे भी अभी एक भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ. बहुत कोई फास्ट होगा तो 7 मिनट हो गए, 7 मिनट्स, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑन राइटिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड डेट टू सम बोगस आंसर. में क्वेश्चन 1 उनको नहीं आता वो, पर they have learned from the coaching industry ki I have to give 7 minutes to this every question and I have to follow the word limit of 150 words. अरे भाई, कोई लिमिट की बात नहीं है, सिर्फ वर्ड लिमिट की बात करनी नहीं है. we have to talk about time limit only, that's all. ठीक है, वर्ड लिमिट तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है. nobody is going to count the word also. I will discuss that also once again कि क्या वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, बिफोर दैट first of all let you my aim to you today is to let you know कि how to write in a decreasing order of knowledge in questions. ठीक है, कैसे करना है. तो क्या करेंगे, so जैसे मैं क्या करता था. ठीक है, so as soon as I get the paper of GS1 I'll just glance. मुझे वही देखना है, जैसे ना एकदम मछली की आंख, कि क्या I knew that कि I have the geography optional. तो geography optional में मेरे से बढ़िया नहीं लिख पाएगा कोई नॉन ज्योग्राफी वाला. तो मुझे क्या करना है, I have to just find out कि इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, जस्ट आई टू सी विच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर में ज्योग्राफी है. तो मैं जैसे पेपर लिया, आई जस्ट सी ओके क्वेश्चन 6, 7, 8 है, सॉरी 8, 9, 10 हुआ, एंड मे बी 17, 18, 19, 20. सो जस्ट मैंने देखा, अभी पेपर उसने दे दिया है और दे चुका है, और जस्ट 2 मिनट बाद बोलेगा घंटी लिखना है. तो इमीडिएटली आई विल सी क्वेश्चन में 15 मार्कर देखेंगे पहले, क्योंकि ऑलरेडी ज्योग्राफी आती है, तो लेट्स स्टार्ट विद 15 मार्कर.
50 मार्कर पे आए एंड देखा 18 90 20 में 20 वाला अच्छा आता है, 19 भी बढ़िया, दोनों ही आता है, बहुत अच्छा लिख दिया, ठीक है, ओके। तो घंटी बोली और तुरंत पेपर खोल के कुछ नहीं पढ़ा, सीधे क्वेश्चन 19 पे आए या 20 किया है, पेज खोल के स्ट्रेट अवे क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके थे, सीधे मार के स्टार्ट। सो यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, वेरी फर्स्ट सेकंड यू स्टार्टेड राइटिंग द आंसर। अब जो लोग लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो 10 मिनट तो पीछे हो गए आपसे, ठीक है। यू आर गेनिंग एज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड ऑनवर्ड यू स्टार्टेड द राइटिंग द आंसर, ठीक है। किसका आंसर लिख रहे हो? जो आपको बेस्ट आता है, बेस्ट, क्योंकि आपका ऑप्शनल है या मे बी आपका कंट्रोल है उस टॉपिक सब्जेक्ट पे। देन क्वेश्चन 20 स्टार्ट किए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन होता है तो थोड़ा इनर्शिया रहता है, देयर विल बी लाइक इनर्शिया फॉर यू टू राइट एन आंसर, होता है, सबको पता है, यू नो, इन ड्यूरिंग राइटिंग द टेस्ट स्टार्टिंग में इनर्शिया, लास्ट में फ्लो इंक्रीज और एकदम लास्ट में बहुत फास्ट हो जाता है। सो बट लास्ट एकदम फास्ट कब होता है? जब आप अच्छा वो चलो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा इसमें? as soon as the very first second I'm going to write the answer, फट लिख दिया, इंट्रोडक्शन, डायग्राम जो भी था, whatever क्वेश्चन, अंडरलाइन, हाइलाइट्स, whatever, अगला पैराग्राफ, पॉइंट पॉइंट ये पॉइंट्स, अगला पॉइंट एंड कंक्लूजन। मे बी इट विल टेक सम 13 14 or 15 मिनट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन, 15 मिनट्स ले सकता है और लेता भी है फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा इनर्शिया प्लस इसका स्टार्टिंग ऑफ माइंड भी गोइंग टू, है ना, एसोसिएट विद ईच एंड एवरी, फिर उसको फंक्शनिंग फास्ट होने लग जाता है, ठीक है। सो विद इन 15 मिनट्स यू हैव अटेंड फर्स्ट पिक्चर। कुछ लोग तो 10 मिनट बाद स्टार्ट किए, तो आप एक क्वेश्चन से एज बना लिए एंड यू हैव रिटन द बेस्ट आंसर एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड। वो कंपेयर जब होगा तो यू विल गेट 10 मार्क्स और 11 मार्क्स आउट ऑफ 15, ठीक है। एंड बट यू हैव स्पेंड मोर मिनट्स, आपको 12-13 मिनट नहीं किया, आपने 15 मिनट्स किया, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव गेन्ड मार्क्स। देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, दैट इज मे बी 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आपने 19 देखा, ओ दैट आल्सो यू नो, ऑलरेडी आप देख भी चुके हैं, उसको लिखना शुरू किया फटाफट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फास्टर, मे बी 11-12 मिनट्स में हो गया वो, यू फिल्ड ऑल द 3 पेजेस, डायग्राम, व्हाटएवर पॉइंट्स यू नो, यू रोट एवरीथिंग एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, बढ़िया करते हैं। देन यू प्रोसीड टू द मे बी 18 क्वेश्चन, वो भी हुआ, अब उसमें और कम टाइम लगेगा, मे बी यहाँ 13 लगा तो वहां पे 12 मिनट्स लगा, ठीक है। देन यू थॉट कि 10 मार्कर भी कर लेते हैं, बिकॉज दैट 3 क्वेश्चन आई नो वेरी वेल, ज्योग्राफी का है और 2-2 पेज लिखना है। देन यू प्रोसीड टू द डेट, वो भी आपको आता है, फटाक से उसको भी लिख दिया एंड ऑलमोस्ट वो आपको 9 मिनट 10 मिनट्स में हो गया और मे बी 7 मिनट्स में हो गया। देन यू प्रोसीड, तो इसमें क्या होगा, इन द वेरी फर्स्ट आवर तो आपका जो स्पीड रहेगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, लेकिन स्लोली स्टेडली जो अगले क्वेश्चंस होंगे उसमें टाइम कम लगेगा, बट यू हैव अटेम्प्टेड वेरी वेल। सो देयरफॉर इन द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट आवर, यू माइट हैव अटेम्प्टेड 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस, ऐसे होता है, स्टार्टिंग में कम होता है, 5 क्वेश्चंस, बट ऑल्दो यू हैव टेकन मोर टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस, बट आपने बेस्ट आंसर लिखा है। So examiner will give you maximize, your score will be maximized in that question compared to the other candidates, because उन्होंने तो बोगस लिखा होगा या वो लाइन से चलेंगे तो वो 18-19 क्वेश्चन तो छूटने वाला होगा, आपने पहले लिखा है तो बेस्ट आंसर होगा, उसका कंप्लीट आंसर होगा, एवरीथिंग इज देयर, डायग्राम एग्जांपल्स एवरीथिंग, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। अदरवाइज अगर उसको लास्ट में करते तो आपका भी नोन क्वेश्चन छूटने लग जाता, और छूटने लगा तो यू विल बी राइटिंग, पेपर छूट रहा है तो कुछ भी लिख दो, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा बनाया, डायग्राम बना नहीं बना, व्हाटएवर यू रोट समथिंग एंड फिर एग्जामिनर पेपर छीन के लेके चला। तो आपको आता हो क्वेश्चन, आपके 4 नंबर कम हो गए उसमें, जो आप 11 मार्क्स ले सकते थे, 10-11 मार्क्स ले सकते थे ऑन दैट क्वेश्चन, यू हैव स्कोर्ड 6 मार्क्स 7 मार्क्स, क्योंकि यू हैव रिटन, है ना, नॉट इन दैट डेप्थ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, और उसका कंप्लीशन भी अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन जिसको आता था आपने पहले किया, यू हैव रिटन द बेस्ट आंसर, यू गॉट द बेस्ट मार्क्स, ठीक है। तो आप ये जरा सोचिए, इन जनरल अगर आपने ऐसा किया है, सो आउट ऑफ 15 मे बी आपको 10 मार्क्स ही दिया, तो 3 क्वेश्चन आपने किए, वहां किए 30 मार्क्स, मे बी वहां पे कुछ क्वेश्चन किए, 1-2 क्वेश्चन वहां किए, 2 मार्कर में, 10 मार्कर में भी यू गॉट 7 आउट ऑफ 10, कितने मिल जाएंगे आपको, मे बी 7 मार्क्स मिल गए, और 1-2 क्वेश्चन, फिर यहाँ मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन है, तो एक आपके लिए, तो एटलीस्ट यू स्कोर 45-50 तक खींच सकते हो फर्स्ट आवर में, है ना, फर्स्ट आवर 10 मिनट्स, फर्स्ट आवर 5 मिनट्स, व्हाटएवर। सो you 50 type 45 to 50 you could have increased your marks in the very first hour। अब आप बताइए फर्स्ट आवर में जनरली क्या टारगेट होता है यहाँ सबका, कि सर 100 मार्क्स हमने क्रॉस कर लिया, 100 मार्क्स में तो 50 मार्क्स 50% क्रॉस इन द वेरी फर्स्ट आवर, तो आपने एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा,
कि ओके 50 मार्क्स तो मेरे क्रॉस हो गए, 2 घंटे में आई हैव टू स्कोर मोर देन 50 अगेन, तो थोड़ा सा इजी हो गया कि 50% टारगेट हैव अचीव्ड इन 1/3 ऑफ द टाइम, रिमेनिंग 50% विल बी स्कोर्ड इन नेक्स्ट 2/3 ऑफ द टाइम, राइट? तो थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड यू हैव स्कोर्ड you have maximized your score because you are writing the answer in the best way to least way, that means best known answer to decreasing level of knowledge, ठीक है? तो यहाँ हुआ इन द सेकंड आवर, बिकॉज आप सेकंड आवर पे रखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो in that hour the best questions you have attempted here which you know very well, then secondly my maybe next to the best to geography, maybe I love the modern India and I have good knowledge of maybe ancient India or culture part, then I will jump into that questions, अब मैं सीधे करूंगा क्या मॉडर्न इंडिया क्वेश्चंस, मॉडर्न में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन व्हाटएवर आई हैव अटेम्प्टेड दैट, लेकिन ज्योग्राफी जितना नॉलेज थोड़ा सा कम उसमें लिख पाऊंगा, आई विल बी गिविंग थोड़ा लेसर टाइम, मे बी नॉट 15 मिनट्स तो नहीं होगा, वो तो कम ही होता जाएगा, अब मे बी 11 मिनट्स 12 मिनट्स आई हैव रिटन दैट आंसर, फिर आगे मूव किए और 11-10 है ना, फिर कर लिए, तो इन द सेकंड आवर यू माइट बी एबल टू अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस, ठीक है? तो फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस, सेकंड में 7 क्वेश्चंस, देन यू आर कमिंग द थर्ड आवर, तो थर्ड आवर में क्या होगा, अब सब मिक्सअप हो गया, कुछ 10 मार्क का, कुछ 15 मार्क का, इन द थर्ड आवर यू नो लेसर क्वेश्चन, मतलब वो लेवल जो कम था, जो फर्स्ट में था, फर्स्ट आवर में बेस्ट नॉलेज का, वो धीरे धीरे कम डिक्लाइन होता है, नाउ यू नो लेसर क्वेश्चंस एंड लेस कंटेंट यू हैव, सो लास्ट के फिर उसको करोगे, उसमें थर्ड आवर में यू हैव टू डू 8 क्वेश्चंस, क्योंकि तब आपका पूरा होगा 20, तो 8 क्वेश्चंस में मे बी इन द लास्ट जो 2 क्वेश्चंस होंगे, you might be knowing just one definition, maybe 2 लाइन 4 एग्जांपल 3 2 लाइंस, सो वो लास्ट में जब 10 मिनट्स होता है तो मे बी यू लेफ्ट विद द 3 क्वेश्चंस, but that 10 minutes you are writing that 3 lesser known answers, so maybe उसको आप 4 मिनट भी लिख देंगे, 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 1 पेज 1.5 पेज, आपका काम हो गया, क्योंकि you know that much only, so आपको जो नंबर बोगस आंसर लिखने के मिलते हैं 3 नंबर, वो 3 नंबर आपको वही 1.5 पेज 1 पेज लिखने में मिल जाएंगे, बिकॉज उतनी कंटेंट है, एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, नो नीड टू इलैबोरेट unnecessarily, so marks will you will get the same almost, but you have जो टाइम आपने यहाँ कम लिया वो कहीं और इन्वेस्ट हुआ, स्टार्टिंग में you have invested more time to maximize your score, and here the score will remain the same almost, so therefore you have reduced the time, and consequently the time कम हुआ तो वर्ड्स कम हो गए, ठीक है? अगर आप ज्यादा ही वर्ड्स लिखोगे तो बोगस वर्ड्स होंगे ना, इट विल बी जस्ट यूजलेस, सो बट इट विल, इफ यू राइटिंग द बोगस आंसर, दैट विल एक्चुअली, है ना, दैट विल एक्सट्रैक्ट योर मार्क्स फ्रॉम द ओरिजिनल बेस्ट आंसर, वहां से कम हो जाएगा, यहाँ आपको उतना ही मिलना है, ठीक है? तो ये तो क्लियर है, तो इन द फर्स्ट आवर 5 क्वेश्चंस, सेकंड आवर 6 क्वेश्चंस, सॉरी 7 क्वेश्चंस, एंड द थर्ड आवर 8 क्वेश्चंस, so टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है? ये प्रोसेस होना चाहिए द बेस्ट टू वर्स्ट, इससे आप इजीली द बेस्ट नोन क्वेश्चंस में यू विल स्कोर, मैक्सिमाइज योर मार्क्स, और लीस्ट वर्स्ट में उतने मार्क्स जो आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है कि नहीं? देन वी प्रोसीड फर्दर। अच्छा, वर्ड लिमिट और ये बताते हैं, सो आई विल टेल यू दैट दिस थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल पेपर्स एंड एवरी क्वेश्चन, बेस्ट नोन से वर्स्ट में ही करना है, पहला चीज। सेकंड चीज, वर्ड लिमिट, नाउ पीपल सर 150 वर्ड से ज्यादा हो जाएगा, ये 250 वर्ड से ज्यादा हो जाएगा, सी word limit is automatically controlled by the number of pages you have and the time you have. Now time we know that we are not, see now I'm not going to control the word limit, जो आपको बेस्ट आता है 250 वर्ड्स नहीं, आप 300 वर्ड्स लिखिए, जितना स्पेस है उतना ही लिखेंगे, राइट? स्पेस तो जितना है उतना ही लिख पाएंगे, 3 पेजेस आर देयर, आप डायग्राम में बनाएंगे, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट कांट रिप्लेस द, you don't have the the time, तो जो मान ली 12 मिनट 13-15 मिनट जितना भी है, that will give you, जो 3 पेज हैं उसमें 3 पेज में उतना ही लिख पाएंगे, there is no way to increase your words again, so that is automatically controlled by the pages you have, और टाइम आपका 15 मिनट तो पहला क्वेश्चन में लगेगा, this rate will be going, the time will go on reducing because as the time increase होगा, जैसे आपका या सेकंड आवर में, थर्ड आवर में टाइम कम होता जाएगा, बिकॉज नॉलेज भी कम हो रहा है, कंटेंट भी कम हो रहा है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, तो वर्ड लिमिट को बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? और अगर इफ यू कैन इंक्रीज द वर्ड लिमिट, मतलब आप ज्यादा लिख सकते हैं, दैट इज बेस्ट वे, क्योंकि
there is no way that UPSC will reduce the marks in writing the more words. In fact, if you are writing lesser words, तो वहां मार्क्स कम हो जाएगा. कैसे? आपके को 3 पेज दिया है और आप 2 ही पेज लिख रहे हैं. अब ऑब्वियसली 3 पेज में 250 वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो दो पेज में कम ही आएंगे, 150 200 से कम होंगे. अगर वो कम होंगे, ऑटोमेटिकली यू नो लेसर अबाउट दैट थिंग. कंटेंट कम है, मार्क्स लेस है. As compared to the other candidates who have written 3 pages, you have written 2 pages, and 2 pages means lesser word limit means lesser content, means lesser knowledge. तो बेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. अगर आपका वीक आंसर है, कमजोर आंसर है, लास्ट में करना है, लास्ट 2 क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टाइम एंड यू डोंट हैव कंटेंट आल्सो. सो व्हाटएवर मार्क्स जो आपको मिलना चाहिए वो आपको 1 पेज 1.5 पेज में मिल जाएगा. वर्ड्स भी कम रहेंगे, कंटेंट भी कम रहेगा, मार्क्स भी कम रहेंगे. बट हम लोग को क्या देखना है? हम लोग ये देखना है जो मुझे बेस्ट आता है, और आता ही है, वहां मुझे मैक्सिमाइज करना है उसको. दैट इज द स्ट्रेटजी. वहां मेरे नंबर कम हो गए तो फिर तो जिसमें कम नंबर है वो तो कम ही रहेंगे, लेकिन जो आते क्वेश्चन कम हो गए या छूट गए, देन फिर तो खत्म है मेरा खेल, फिर तो मैं आउट हूं वैसे. दैट इज वाई आपका जब क्वेश्चन छूटेगा नहीं स्ट्रेटजी से. कैसे? अगर छूट भी रहा होगा तो लास्ट के क्वेश्चन छूटेंगे, लास्ट आवर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट रहे होंगे, तो वो भी आपको 10 मिनट का टाइम रहेगा, आप करेंगे. सो व्हाटएवर यू आर राइटिंग, दैट इज द ओनली थिंग यू नो. सो आपने कुछ अननोन क्वेश्चन छोड़ना है तो उसमें कोई टेंशन नहीं. नोन क्वेश्चन आपके नहीं छूट रहे. दैट इज इंपॉर्टेंट. नोन क्वेश्चंस यू आर नॉट, है ना, गोइंग टू लूज. यू आर गोइंग टू लूज ओनली द अननोन क्वेश्चंस. तो अननोन क्वेश्चन में छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है. गौड़ में पढ़ना, अननोन तो छूट रहा ना. अननोन में वैसे कुछ नहीं आता, ऐसे ही बोगस आंसर लिखना है, यू वोंट गेट मार्क्स आल्सो, है ना. सो व्हाटएवर यू आर राइटिंग, तो आपको क्वेश्चंस, नोन क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, वो नहीं छूटेंगे. अननोन क्वेश्चंस, लेसर नोन क्वेश्चंस में व्हाटएवर कंटेंट इज देयर यू आर गोइंग टू राइट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक द मार्क्स. ठीक है, इसमें क्लियर है कि नहीं? ऑल. ओके, बाकी सब. सो अब आप लोग, आर यू गोइंग टू फॉलो दिस? बिकॉज दिस विल ट्राई टू राइट दिस इन द टेस्ट सीरीज, and definitely you will see that your quality of answer will have improved and your marks also will improve और आप बेस्ट आंसर लिख पाएंगे. राइट? अदर देन दिस आप कुछ भी करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू मैक्सिमाइज योर स्कोर विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन. आपको बहुत एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू इंक्रीज द मार्क्स. और यही लिख के आप आंसर लिख देंगे 440. इसके कितने आए थे राहुल के? 447 समथिंग लाइक दैट. हाँ, ये थे. ऐसे में भी ऐसे थे. 147 नहीं 464 थे इसके जीएस में. ऐसे में 144 थे. सो कैसे किए? यही स्ट्रेटजी. 464 तो बहुत है ना. He has increased this number because of this strategy. और सभी लोग कर रहे हैं. बहुत सारे और सिलेक्शन भी, मुझे नंबर याद नहीं है, सब 400 प्लस है. जिनका सिलेक्शन नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल विनेगर लास्ट ईयर नहीं हुआ, इस बार इसका हुआ है. तो लास्ट ईयर जब नहीं हुआ तब उसके 400 नंबर थे, जब नहीं हुआ था. जब होता है तो 420 430 होता है. राइट? सो दिस स्ट्रेटजी विल वर्क डेफिनेटली फॉर एवरीवन, बिकॉज दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी. जो आता है पहले वो करना है, जो नहीं आता उसको बाद में करना है. ठीक है, ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. कुछ पॉइंट्स और हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको कि ये स्ट्रेटजी कब वर्क करेगा. जेन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, स्टार्ट द आंसर इन द वेरी फर्स्ट मिनट, द वेरी फर्स्ट, इमीडिएटली घंटी बजी और आप चालू लिखना. इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस, तब आपका थोड़ा सा वीक हो जाएगा. कैसे? सी देयर आर 20 क्वेश्चंस, आप सब पढ़ेंगे, सब समझेंगे, फिर सब लिखेंगे एक एक करके. तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे विच यू आर नॉट वेल अवेयर, आपको डाउट होगा या कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा आपको डिमोटिवेशन भी आ जाएगा, अरे ये नहीं आता, वो नहीं आता फला. तो द बेस्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो भी आप वीकली करेंगे. आपको लगेगा यार मेरा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ये 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या लिखना है, और जो आ रहे हैं वो भी कमजोर लिख देंगे, तो मार्क्स कम हो जाएंगे. तो मैंने क्या बोला कि यू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन विच यू नो वेरी वेल, बेस्ट. तो जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का पार्ट ही पढ़ना है क्वेश्चन, बाकी हिस्ट्री नहीं पढ़ना मुझे. पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा और वही अटेंड करूंगा, फिर मैं बाकी देखूंगा नेक्स्ट पार्ट, हिस्ट्री हो या मॉडर्न है या कुछ भी होगा. राइट? तो मेरा स्ट्रेटजी है. वैसी स्टडी सबका अपना अपना सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. द बेस्ट सब्जेक्ट टॉपिक फर्स्ट उसको देखना है और उसी को कर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट को देखना है. क्यों? क्योंकि करना सारे क्वेश्चंस हैं, बट बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड योर एबिलिटी टू राइट द बेस्ट आंसर. जो आपका स्ट्रॉन्ग है पहले उसको करना है. जो आप सब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कम हो सकता है इफ यू डू नॉट नो 3-4 क्वेश्चंस. तो बेटर है कि वो बाद में देखिए लास्ट में. तो देन आल्सो द कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका हाई रहेगा, देन ऑटोमेटिकली दोस अननोन क्वेश्चंस विल आल्सो, योर माइंड विल आल्सो वर्क ऑन नोइंग दोस आंसर्स, क्या लिखना है
आप समझ जाओगे, धीरे धीरे करके आप उसको रिलेट करके आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अननोन भी धीरे धीरे होने लगेंगे। ओके, नाउ इट इज क्लियर। नेवर एवर राइट इन द सीरियल ऑर्डर, whether 1 to 20 or 1 to 11 and then sorry, first is like 11 to 20 and then 1 to 10, ये भी नहीं, बेस्ट नोन से लीस्ट नोन, दिस इज द स्ट्रेटजी। ठीक है, दोज हु हैव यूज्ड दिस ऑलवेज स्कोर्ड मोर देन देयर ओन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, you have to draw the diagrams, flow charts, figures wherever required, and that is possible when you are going to attempt it in this strategy way. Why? तो जब आपको बेस्ट क्वेश्चन आता है तो आपको उसका डायग्राम भी आता रहेगा। कुछ अच्छा आता है, कोई अच्छा टॉपिक तैयार है, यू माइट बी नोइंग द डायग्राम आल्सो, यू माइट बी नोइंग द एग्जांपल्स, फ्लो चार्ट्स, फिगर्स, सब पता होगा, तब आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। जब आपको नहीं आएगा तो ये सब भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली लेसन नोन नॉलेज होगा, लेसन ये सब होगा, अपने आप लास्ट में जाएगा। कम नंबर आएगा, ऐसे भी कम आता है, राइट। तो ड्रॉ डायग्राम, फिगर्स, फ्लो चार्ट्स और व्हाटएवर, और मे बी द जो भी उसका रिलेशन, इन रिलेशन टू व्हाट यू हैव रिटन, कोई डायग्राम फिट होता है तो ड्रॉ इट इन अ सिंपल वे। सिंपल वे मींस जस्ट वन वर्ड और टू वर्ड आप आए, ऐसा कोई बॉक्स बना के कुछ लिखना हो, एरो बना के उसको कनेक्ट करना हो, वन वर्ड और टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स मैक्सिमम। बहुत लोग क्या करते हैं, फुल सेंटेंस पूरे लिख देते हैं, पूरा डायग्राम फुल सेंटेंस, पूरा पूरा राउंड डायग्राम एंड फुल सेंटेंस। सी डायग्राम का पर्पस क्या है? डायग्राम पर्पस इज दिस, दैट टू मेक द थिंग्स सिंपल, सिंपलिसिटी इज द पर्पस। एग्जामिनर ने देखा डायग्राम और उसको पूरा क्लियर हो गया क्या ये कहना चाह रहा है। अब अगर you are writing the full sentences, your long phrases in every circle of the diagram, then your मतलब एग्जामिनर is not going to look, पूरा पढ़ेगा समझेगा, तो इससे अच्छा तो आपको कंटेंट लिख देना चाहिए। बेटर टू राइट द कंटेंट एंड देन, क्योंकि वो छोटा छोटा लिख के पूरा एक्सप्लेन किया होगा डायग्राम में, इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली, बिकॉज इट विल exert a pressure in the examiner's mind। देखिए, एग्जामिनर को अगर आपने प्रॉब्लम किया, मतलब उसको प्रेशर हुआ या उसने दिमाग लगाना शुरू किया पढ़ के क्या लिखा है समझने के लिए, देन ही विल गिव यू मार्क। तो नहीं, ही वोंट। उसकी लाइफ इजी करिए, वो आपकी लाइफ इजी कर देगा। आप लाइफ इजी करिए, एज ए ग्लांस ही शुड नो, अच्छा सब डायग्राम है, सब लिखा है, अंडरलाइन है, हाईलाइट है, ये फटक से नंबर दे देगा। और आप उसको पूरा कंप्लीट डायग्राम बना देंगे, एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है, अच्छी हैंडराइटिंग भी नहीं है, सो एवरीथिंग विल काउंट। उसको समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो मार्क्स थोड़ा सा कम। ठीक है, वो अपना आगे बढ़ जाएगा। उसको आपसे कोई नहीं जान रहा ना, ही और आप कौन है, किसी कुछ नहीं पता। उसका काम है कॉपी चेक करना, पैसे ले आना। तो जो इजीली चेक हो सकती है कॉपी, जिसमें जल्दी कॉपी चेक हो सकती है, वही प्रेफर करेगा, वही को जल्दी मार्क्स देगा, आगे बढ़ जाएगा। सो सिंपलिसिटी इज द की। आपका डायग्राम सिंपल होना चाहिए, शुड नॉट इंक्लूड every detail, minute detail, whatever the basic detail is there, with one or two words maximum, that can be done, not with the long phrases or sentences। ठीक है, क्योंकि इफ यू सी द कोई बुक्स देखेंगे तो सब में सिंपल डायग्राम, उतना डिटेल में कोई नहीं लिखता, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू रीड, इवन यू डोंट वांट टू रीड द होल डिटेल्स ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, देन सेकंड थिंग, नेवर सब्स्टिट्यूट द राइटर्स विद द डायग्राम। ना एक ट्रेंड आया है लोगों में कि जो लिखना है उसको डायग्राम के फॉर्म में लिख देते हैं और हो गया, इंट्रोडक्शन पहला लिखा, फिर पूरा बिग डायग्राम बना दिया, सब उसके आंसर्स को उसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया, नीचे कंक्लूड कर दिया। दिस इज ए बिग नो फॉर द एग्जामिनर। जो ये जितना ज्यादा करेगा उतना नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में मे बी दे विल गिव यू द मार्क्स, बट एज सुन एज दे विल सी दैट दिस इज योर स्ट्रेटजी व्हिच हैज नो कनेक्शन विद द इंट्रोडक्शन, देयर इज नो कनेक्शन विद द अदर थिंग, कंक्लूजन, तो वो डायग्राम फॉर्म में यू कैन नॉट रिप्लेस द डायग्राम, the write up with the diagram, write up you cannot replace, write up should be there, diagram is also there। तो डायग्राम का पर्पस क्या है? सिंपलिसिटी। राइट अप क्या है? डिटेल्ड वर्जन ऑफ द मे बी डायग्राम और व्हाटएवर। सो वो रिप्लेसमेंट नहीं करना है, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग, जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें लिख दिया छोड़ा, वही तो मतलब कि अपना एग्जामिनर समझे पढ़े, वो पॉसिबल नहीं। ओके, वो क्लियर हुआ ना? So also use same style of, when you are going to write the answer, don't use the same style in every question। वही स्टाइल मतलब वही डायग्राम वाला स्टाइल, वही वाला हर एक में डायग्राम भी जरूरी नहीं है। इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली यू ड्रॉ, especially in geography it is required, history sometimes you want to show something in the map of India or world, so वहां पे whatever, और जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी है और मे बी अर्बनाइजेशन का द कॉजेज और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो वहां फ्लो चार्ट चलेगा।
ठीक है. So it depends that what is going to be used where. So unnecessarily don't think that just डाल देना है तो नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है. So instead वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा. तो जहां रिक्वायरमेंट है वहां डालिए, जहां नहीं है कोई बात नहीं, यू प्रोसीड टू. डोंट राइट द हैव द सेम स्टाइल ऑफ राइटिंग एवरी आंसर. ठीक है. Also you have to underline the keywords. You have to underline the keywords of every क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लेना, सो दैट द एग्जामिनर हैव ए लुक, अच्छा ये लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट इज राइटिंग. ठीक है. ऑल्सो एक और चीज बता देता हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ यू आर, जब आप अपना कंप्लीट कर रहे हो पेपर तो लास्ट में 2-4 क्वेश्चंस में आपका कंटेंट ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा. तो यू हैव सम लेफ्ट पेजेस, तो उसमें लिखा होता है स्ट्राइक ऑफ द लेफ्ट पेजेस, है ना, जितना आंसर हो गया उसमें लेके बाकी स्ट्राइक ऑफ. तो मेरा ये कहना है कि डोंट स्ट्राइक ऑफ द पेजेस, बिकॉज समटाइम्स यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, लेटर आपके पास कुछ टाइम बच जाता है, 10 मिनट 5 मिनट बच जाता है, देन यू माइट थिंक ऑन सम अननोन क्वेश्चंस एंड यू वांट टू राइट सम मोर एडिशन, कि भाई 5 मिनट बैठे हैं तो चलो एक नंबर ले लेते हैं, तो 5 मिनट को यूटिलाइज करना है, तो स्ट्राइक ऑफ कर देंगे तो यू कैन नॉट राइट, है ना, एनीथिंग. स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे देन यू कैन राइट समथिंग व्हाटएवर, एंड बिलीव मी नथिंग विल हैपन. आप जो स्ट्राइक ऑफ नहीं करे हैं तो अच्छा है, वही रखिए, यू राइट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड मोर, फिर उसको क्लोज करिए, लास्ट मिनट तक लिखते रहिए व्हाटएवर, वेयरएवर यू वांट टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द क्वेश्चंस. ठीक है. तो काटना नहीं, स्ट्राइक ऑफ नहीं करना है, भले लिखाओ, डजंट मैटर, कोई इससे कुछ होता नहीं है. ठीक है. मैंने कभी भी स्ट्राइक ऑफ नहीं किया कोई पेजेस में, और मुझे कभी नंबर की जीएस में कभी दिक्कत नहीं हुई. ठीक है. इट वाज ऑप्शनल ओनली, और सम पार्ट रिलेटेड टू द इंटरव्यू, कि कहीं ना कहीं 8-10 नंबर से रहा हूँ, आउट ऑफ 4 3 टाइम्स, मतलब 4 में से 3 इंटरव्यू में माइनर मार्क्स से रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन पे. ठीक है. तो कभी जीएस की वजह से नहीं हुआ ऐसा दिक्कत. इवन इन वन टर्म आई टू द पाली, बट आई गॉट द ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस, और वो बिकॉज ऑफ विच आई गॉट द इंटरव्यू कॉल इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डबल डिजिट मार्क्स इन पाली लिटरेचर. मैंने लास्ट में पाली लिया था, मैं लास्ट सेकंड लास्ट स्टूडेंट, बट दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर आई डिड, एंड वो यूजलेस था, वो नहीं लेना चाहिए था, बट उसके बाद पाली तो हटा दिया गया. लेकिन उसके पहले जो ऑप्शनल थे, जैसे जनरल साइकोलॉजी भी था, डबल ऑप्शन भी रहे हैं, तो वो उस समय नंबर सब में आए हैं. ठीक है. यही सब मैंने फॉलो किया हुआ है. ठीक है. अंडरलाइन जरूर कर लेना है कीवर्ड्स को, उसके बिना एग्जामिनर को विजिबिलिटी नहीं होगी. देखिए, मेल मेकिंग योर आंसर इज विजिबल इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर देखा, ओके विजिबिलिटी है, पर अंडरलाइन है, हाईलाइट है, डायग्राम है, व्हाटएवर इज देयर, वेरी क्लियरली यू हैव गिवन द विजिबिलिटी टू द एग्जामिनर ऑफ योर आंसर, तो ऑब्वियसली यू गेट मोर मार्क्स. कोई पॉइंट लिखना है, पॉइंट में टेबल फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है. डायरेक्ट लिखना है, जो पूछा कि एग्जैक्टली लिखना है, भूमिका नहीं बनाना है इंट्रोडक्शन, बिकॉज टाइम नहीं होता, और क्वेश्चंस भी कम है, मतलब क्वेश्चन तो पूरे ही है, वर्ड लिमिट भी है, टाइम लिमिट भी है, पेज लिमिट भी है. सो भूमिका बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम टू द पॉइंट डायरेक्टली एंड राइट एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, देन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. लेजिबल होना चाहिए, लेजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव वेरी बैड हैंड राइटिंग, देन मतलब ट्राई टू इंप्रूव देम, एटलीस्ट शुड बी लेजिबल फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रिटन, एल्स आपके नंबर लूज होंगे. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक से नहीं लिखे हैं, द एग्जामिनर दोज हु इज चेकिंग द कॉपी विल नॉट टेक एनी पेन फॉर यू, कि क्या लिखा है, कि ठीक से पढ़ते हैं, हाँ, उसको समझते हैं, व्हाट एवर ही हैज रिटन, लेट्स सी एंड फाइंड आउट क्या है, तो उसके टाइम नहीं है. तो व्हाई ही विल डू, विल जस्ट स्किप योर आंसर, एंड जो समझ में आएगा नंबर दे देगा. ठीक है. सो एक चीज है. सेकंड पार्ट भी ये भी है, मान के चला जाए कि जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, so some of you might be writing long introductions, ये एक पैराग्राफ का बड़ा सा 5 पन्ना, या कोई ऐसा होता है कि पूरा एक पेज इंट्रोडक्शन, देन अगले पेज से स्टार्ट है कंटेंट, देन कंक्लूजन भी आधा पेज. सी, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस ऑन दिस. सी, introduction and conclusion, Tina Dabi, who was a topper, her in her interview I've seen that she has told that she has written introduction and conclusion in every question, and all the answers in paragraph format. However, the Ira Singhal, she was also the topper, she told that she has not written the introduction and conclusion in any of the question or most of the question, because she is a slow writer, she does not write very fast. That is why, so she wrote in a all the questions in point format, and she has hardly any time to write the introduction and conclusion. So mostly point format में जो पूछा है वही लिख दिया, underline कर दिया. Both were toppers without any doubt.
कैसे कि भाई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यूपीएससी हैज नॉट टोल्ड यू टू राइट, बट यू आर राइटिंग बिकॉज कोचिंग हैव टोल्ड यू इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, कंटेंट। यूपीएससी वांट द आंसर्स व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड, दे हैव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कैरीज मार्क्स ड्यूरिंग द एसे पेपर। एसे पेपर में इट कैरीज द मार्क्स, क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे इज ए लेंदी, है ना, लेंदी आंसर राइटिंग और लेंदी जीएस आंसर वेयर ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स यू हैव टू थ्रो इन लाइट टू द क्वेश्चन आस्क्ड, एंड उसको आपको लिखना है एक नरेटिव स्टाइल में, मे बी, और एक ऐसे स्टाइल में। So here the introduction conclusion carries marks in the essay paper. However, in the questions which in GS 1 to 3 essay 1 2 3 4 essay उसमें introduction conclusion अलग से marks नहीं है. Marks is on the only on the content. Content what you have written. That is mainly the content part, not the introduction, not the conclusion. Okay, got my point? This is the thing. So therefore essay में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट हैव नॉट गिवन यू द वे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आगे कंक्लूजन होना चाहिए, बट वो तो कोचिंग सेंटर ने ऐसा बना दिया है तो हम लोग मानते हैं होना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर वेरियस वेज टू डू दिस। कि इंट्रोडक्शन में क्या है, देयर इज नो नीड टू राइट सो मच, जस्ट वन और टू सेंटेंसेस, मैक्सिमम टू सेंटेंस, वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ covering, है ना, 1/10th of the paper or 10%, 50% of the page, that is sufficient, and same conclusion, one or two sentence। तो क्या होगा, you have more time to write the content which is asked exactly by यूपीएससी, exactly जो पूछा वो लिखोगे फिर, ठीक है, उसी के नंबर है, राइट। तो कंटेंट इज द किंग, नॉट द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। कितना भी अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख दो, however the content is weak, कोई दमी नहीं है, बहुत वीक है, बहुत जनरलाइज्ड है, you'll get lesser marks। However, if you write very good content, best part, main जो उसका body है very good है, introduction conclusion है भी नहीं, doesn't matter, you get full marks, whatever जो marks जो आप deserve करते हो वो मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर है कि introduction conclusion is not the basic criteria, criteria is the content, content is weak, answer is marks is less, content is strong, marks will be more, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कीप इट टू वन सेंटेंस और मैक्सिमम टू सेंटेंस, बट वन सेंटेंस इज सफिशिएंट। उसमें उसका जो भी पूछा गया है, देयर इज वेरियस वेज टू इंट्रोड्यूस द आंसर, you may have used the key points, keywords, some previous thing about that thing, background बना सकते हो, या कुछ उसका आगे का जो है वो तो कंक्लूजन चला जाएगा। कंक्लूजन ऑल्सो वन इन वन मोर क्लास आई डिस्कस ऑल द व्हाट टू डू इंट्रोडक्शन, व्हाट टू डू कंक्लूजन, क्या लिखना है, क्या करना है, ऐसे में भी और ऐसे में जनरली, ठीक है। तो ये क्लियर है, दिस थिंग यू 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 आर वेरी क्लियर दैट इतना लिखना है, ठीक है। और उसके उसके अलावा विल डिस्कस लाइक कि आपको जो भी आंसर लिख के आएंगे एग्जामिनेशन में, मैं ऐसे बता रहा हूँ यूपीएससी में, नेवर डिस्कस योर आंसर इन द इंटरवल टाइम, बिकॉज वो आपने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, फ्रेंड ने, यू आर टेलिंग द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द आंसर टू ईच अदर। कुछ छूट जाएगा, कुछ उसका छूटा, कुछ आपका छूटा होगा, लेकिन उसका छूटा होगा तो उसको टेंशन है, आपका छूटा है तो वो बताएगा तो आपको टेंशन है। बेटर क्या है, एंड यू नेवर नो कि एग्जामिनर किस चीज पे फोकस कर रहा है, whatever he is giving you marks, and on what basis you are not there to see your copy also। So टेंशन नहीं लेना है और स्ट्रेस नहीं लेना, इंटरवल में डिस्कस नहीं करना है, ना ही इंटरवल में आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना है, बिकॉज फिर वो रिवीजन का मैं एक दिन बताऊंगा क्या रिवीजन लॉ, ये सब, कि वेदर यू शुड रिवाइज इन द इंटरवल टाइम और नॉट, आई डिस्कस दैट लेटर। उसकी थ्योरीज है क्या, क्या साइकोलॉजी में कि रिवाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई डिस्कस दैट इन सम अदर वीडियो, मे बी नेक्स्ट वीडियो। So यहाँ क्लियर नहीं क्लियर, now you now got the relation between the word limit, time limit and page limit, है ना। और क्वालिटेटिवली आंसर, जो क्वालिटेटिवली ही आंसर होगा, जो वीक आंसर होगा क्वांटिटी, या जिसमें सिर्फ क्वांटिटी होगा वो लास्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड लेसर टाइम उसको डिवोट करोगे, लेस कंटेंट रहेगा, यूजलेस, मतलब उतना उसका हैम्पर नहीं होगा, आपका मार्क्स मेंस में इंक्रीज ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। ऑल वेल, सब क्लियर है। आई होप ये आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, बॉडी ऑफ आंसर पॉइंट लिखने पैराग्राफ में, ठीक है, ये भी ठीक है, बताता हूँ। सी बॉडी
आई टोल्ड यू कि दोनों ने लिखा था, पैराग्राफ में भी पॉइंट में भी, दोनों टॉपर है। हाउएवर जनरल जनरली यूपीएससी में कोचिंग वोचिंग सब लोग क्या कर रहे थे, राइटिंग पॉइंट्स, तो आप भी पॉइंट्स में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। वेदर यू वांट टू एक्सपोज योर आंसर, आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के आंसर है, पहले आवर के, सेकंड आवर के, ट्राई टू एक्सपोज द आंसर टू द एग्जामिनर। तो पूरा पॉइंट में अंडरलाइन, डायग्राम, व्हाटएवर आप करना करिए। अब इन द लास्ट आवर में, लास्ट 3 मिनट में, चार मतलब लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं, यू डू नॉट नो मच, तो अगर आप उसको एक्सपोज करेंगे तो एग्जामिनर पढ़ लेगा, मे बी अच्छा आंसर नहीं होगा, फालतू आंसर होगा। तो उसको कवर अप करने के लिए यू राइट इन द पैराग्राफ। अंडरलाइन तभी करना जब यू आर श्योर कि ये सही है, ये वर्ड सही है, ये इससे रिलेटेड, तभी अंडरलाइन करिए, तो अंडरलाइन भी मत करो। लीव इट टू द एग्जामिनर कि देखो हमने भी लिख दिया है इसको, अब इसको पढ़ो, समझो, दिमाग लगाओ, तो नंबर देना तो दो, नहीं तो नहीं, कोई बात, क्योंकि वो आप एक्सपोज करोगे पॉइंट में अंडरलाइन, तो एग्जामिनर के सामने आ जाएगा, तो एग्जामिनर उसको मिस आउट नहीं किया तो नंबर काट लेगा। पर उसको कवर अप करना है, जो कमियां कवर अप करना है, जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपोज करना है, सीधी सी बात है। तो अब जो कमियां आ गया, अच्छा आंसर नहीं, तो कवर अप करना कैसे करना, पैराग्राफ में कर देंगे, अंडरलाइन वही करेंगे जो आपको श्योर नहीं, तो अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्लियर है अनुराग? पेनाल्टी मार्क्स, पेनाल्टी मार्क्स तो बहुत सारे रीजंस हैं। कोई कोई बोलता है कि रीजन ऑफ क्रॉसिंग डेट मार्जिन, मार्जिन क्रॉस करने के हैं, बिकॉज मार्जिन क्रॉस नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन है, दिस मार्जिन इज फॉर गिविंग यू मार्क्स, एंड यूपीएससी वांट्स यू टू राइट इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, बिकॉज वही आपको पेज अलॉटेड है फॉर राइटिंग। इफ यू क्रॉसिंग और वो टोटल दोनों तरफ लिख रहे हो पूरा, आप सोच रहे हो कि यू आर राइटिंग मोर वर्ड्स, आपको ज्यादा कंटेंट है, तो वो गलत आप सोच रहे हो, और नंबर कट सकते हैं, यू विल गेट लेसर मार्क्स। पेनल्टी मार्क्स मे बी ऑन राइटिंग ओवर द margins both left and right, or maybe right, ठीक है, so be clear that you should not do that. Okay, any doubt? Be clear है कि नहीं clear है? Will you do this? Yes, Maitosh. At least somebody should open the video, let me see also each one of you, क्योंकि वैसे भी मिलना मुश्किल रहता है, तो वीडियो भी देख लेते हैं कौन कौन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, इवन आई सॉ राहुल आफ्टर ही गॉट क्या सेलेक्टेड हुआ तब पहली बार मिला मैं राहुल कौन है, 1.5-2 साल गुड बाद। इवनिंग सर। हाँ, ओके, बोलिए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी इसमें, जैसे हम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली, वो ठीक है सर। सर मान लीजिए कि जो हमारे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो पहले 3-4 पार्ट, फर्स्ट 1 2 3 4 क्वेश्चंस मान लो हमारा वीक वाला पार्ट है, राइट, तो सर मेरा वो बिल्कुल लास्ट 15 मिनट में राइट, अटेम्प्ट होंगे, तो दैट आई समझ विल गया, राइटिंग ओनली हम वन समझ एंड वन गए। एंड हाफ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, तो वहाँ 1-1.5 पेज ही लिख पाऊंगा। हुँ, तो जब एग्जामिनर बैड कॉपी इंप्रेशन। चेक कॉपी चेक करेगा, तो वो स्टार्टिंग से चेक करता है या तो वो क्या चक्कर होता है सर? ठीक। उसमें फिर उसको इंप्रेशन ही बन जाएगा कि पहले 2-3 ही नहीं आते, बाद में तो बिल्कुल ही ऐसा कॉग्निटिव डिसोनेंस के हिसाब से नहीं चल जाएगा काम सर? दिस क्वेश्चन आई गेट एवरी ईयर, ठीक है? सभी को यही है, इंप्रेशन बनाने में डिप्रेशन चले जाएँगे, नंबर तो ओवरऑल कम ही हो जाएगा, ठीक है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूपीएससी में मैंने हर पैटर्न में एग्ज़ाम दिया है, और आई हैव नेवर एवर फॉलोड द वर्ड लिमिट। मैंने हमेशा ज़्यादा ही लिखा है, कम नहीं लिखा है, और नंबर मेरे कभी कम नहीं हुए, ठीक है? जब आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना होता था, जब कॉपी मिलती थी, एंड जिसमें क्वेश्चन 60-60 नंबर की भी थे, अगर आप देखेंगे पहले के पेपर्स, उसमें भी लिखा हुआ है, और जीएस के भी बहुत लंबे-लंबे आंसर लिखे हैं। मेरे दोस्तों ने भी खूब लिखे, मैंने भी लिखे हैं। और आज के डेट में कुछ तो वहाँ पे आईपीएस 2 लोग दिल्ली में ही पोस्टेड हैं, है ना? नॉर्थ ईस्टर्न रेंज का, सागर सिंह कलसी हैं, वो मेरे मित्र हैं, हम लोग साथ रूममेट थे। हम लोग 5-6 लोग थे, एक की तो कोचिंग खुल गई है। तो एवरीबॉडी हैव रिटन मोर देन नंबर ऑफ वर्ड, जो भी यूपीएससी हमेशा यूपीएससी वर्ड बताता रहा, लेकिन हम लोग ज़्यादा लिखे, और बहुत ज़्यादा लिखे, कम नहीं, बहुत ज़्यादा। तो जो 60 नंबर क्वेश्चन होते थे पहले, वो भी खूब 15 पेज लिखते थे, 15 पेज, 20 पेज, कभी नंबर कम नहीं हुए, हमेशा ज्यादा आए हैं, और जो कम लिखते थे उनके कम ही आए हैं। तो एक क्लियर बात है कि वो कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड से कोई नंबर कटते नहीं है, हमेशा टाइम आपका आपका जो है ना, कंस्ट्रक्शन टाइम। अब बात आती है कि वर्ड लिमिट वाला कोई कोई इशू नहीं है, तो खत्म हुआ। महितोष ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, और मैं उसको लास्ट में करूंगा, तो मेरे को उसमें कम लिख पाऊंगा, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट्स में करूंगा, तो 5-5 मिनट भी दिया, तो आई गेट द वीक कंटेंट होगा, 1 पेज लिख पाऊंगा 2 पेज में से,
और एग्जामिनर को लगे इसको ये नहीं आता तो क्या, तो खराब इंप्रेशन होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले जो कॉपी चेक होती थी, जो मेरे टाइम के जब स्टार्टिंग में जो तैयारी किया था, तो उसमें पूरी कॉपी में क्वेश्चन का ऑर्डर से नहीं होता था, क्योंकि अभी तो क्या है कि छप के आता है, तो क्वेश्चन का ऑर्डर ऑलरेडी सेट है। पहले एवरी पर्सन यूज्ड टू राइट एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट किया, क्वेश्चन 6 से स्टार्ट किया, फिर 8 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर से क्वेश्चन 1 आ गया। तो एग्जामिनर में एक ही आदमी कॉपी चेक करता है। अभी करंटली क्या है कि एक पैनल बना होता है जिसमें मान लीजिए GS1 की कॉपी है, तो हिस्ट्री वाली कॉपी, हिस्ट्री क्वेश्चंस अलग आदमी करेगा, फिर उसने उसको छोड़ दिया ज्योग्राफी वाले का, ज्योग्राफी वाला किया, फिर वहां से चला सोसाइटी वाले को, सोसाइटी वाला किया GS1 में, है ना, फिर कल्चर वाला कोई खास बंदा है या फिर एंशियंट मिडिवल का, तो उसको मिला तो वो किया। तो दिस वे इट इज गोइंग, नॉट अ सिंगल पर्सन हु नोज एवरी आंसर वो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो होता है। लेकिन इन केस यू थिंक कि नहीं होगा, मान लीजिए कोई श्योर तो है नहीं, क्योंकि जो मुझे पता है वो यही पता है कि ये फॉलो होता है, इसीलिए एवरीबॉडी इज गोइंग टू राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्यूसी में मिलता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, देयर यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, और उसमें क्वेश्चन वाइज एग्जामिनर बैठते हैं ऑन विच द सब्जेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड। कोई ज्योग्राफर बैठा है, कोई हिस्टोरियन बैठा है, तो वो सब चेक करते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इंप्रेशन वाला, वो तो काम खत्म होगा, क्योंकि हिस्ट्री वाला ही चेक करेगा। अगर वो पहले 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री चेक करेगा, वो आपको ऐसे भी नंबर वैसे भी देगा, वैसे भी वैसे देगा, इंप्रेशन की बात नहीं। बाकी जगह आपको बेस्ट आंसर मिल जाएगा। सेकंड बात, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर लाइन से करेगा कोई बात नहीं, मेरे को कम आता है, मैंने बोगस तो नहीं लिखा ना, तो आपको उसमें आप निकालते हैं 10 मार्क कर रहे हैं, 7 मिनट 8 मिनट, तो बोगस लिखते 2 पेज बनाते हैं, उससे क्या नंबर तो उतने मिलते, 3 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर। अब आपको 1 पेज लिखे तब भी आपको जो चीज आपको एग्जैक्टली बताई आपने लिखा, 2 2.5 नंबर मिले, मान लो बहुत लास्ट हो, हाफ मार्क्स। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन या जो आप पहले क्वेश्चन करके आए, उसमें आपने मैक्सिमाइज स्कोर कर लिया, तो वो जब वहां तक भी पहुंचेगा तो वो तो सोचेगा कितना अच्छा चलेगा, नंबर देगा, खुल के देगा। उल्टा ये सोचेगा अरे बड़े नंबर काट लिया इसका, यहाँ तो अच्छा लिखा है, इसको देते पूरा नंबर। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यस सर। है ना, मेन जो खेल है ना, वो टाइम का है। आपने खराब क्वेश्चनों में टाइम बर्बाद किया, तो अच्छे क्वेश्चनों में आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि लिख ही नहीं पाएंगे, छूट भी जाएगा, क्वांटिटी ना, तो क्वांटिटी ना क्वालिटी, नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगाया और खराब क्वेश्चन में खराब के हिसाब से कम टाइम दिया, मैक्सिमाइज हो गया, 400 प्लस तो ऐसे ही आ जाएंगे, प्रोवाइडेड यू नो द आंसर। आपने बोगस सब में नहीं लिखना है। एक चीज और, कोई मुझसे पूछे यूपीएससी में निकालने के लिए, सर मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज बता दो, बस मैं 2 ही चीज करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, आपका पक्का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। वो 2 चीज क्या है? आई टेल यू। फर्स्ट थिंग इज राइट द आंसर, जैसे मैंने बताया, ये पहला है, बेस्ट टू वर्स्ट, है ना, सीरियल ऑर्डर नहीं लिखना है, बेस्ट टू वर्स्ट लिखना, बेस्ट आंसर से वर्स्ट लिखना है, ये पहला है टिप। सेकंड टिप है कि राइट द आंसर इन द विद स्पेशलाइजेशन, मतलब जनरलाइज आंसर नहीं लिखना है, मतलब कंटेंट शुड बी स्पेशलाइज एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, नॉट एज पर यू नो। मतलब नो मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है, भर 2 पेज लिख देना है जनरलाइज, जनरलाइज आंसर नहीं, राइट आंसर इन द स्पेसिफिक वे, नॉट इन द जनरलाइज फॉर्म। एंड सेकंड, आंसर द क्वेश्चन इन द बेस्ट नोन क्वेश्चन टू लीस्ट नोन क्वेश्चन। ये 2 चीज कर लोगे, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, आने ही आना है, सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी इंटरव्यू में आपके मार्क्स हैं। तो ये 2 बेसिक टिप है, बाकी तो विल डिस्कस और भी टिप्स, ठीक है, ये तो बेसिक 2 टिप है, ये फॉलो कर लो, डेफिनेटली यू गेट द इंटरव्यू कॉल। यस जितेंद्र। सर एक्चुअली जैसे आपने बताया कि हम रैंडम क्वेश्चन चूज करना चाहिए बेस्ट टू वर्स्ट, राइट? बट सर एग्जाम में एक्चुअली मैंने ये फेस किया कि बहुत प्रेशर में ना, मतलब जैसे कि कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए, तो वो टाइम वाला कैलकुलेशन वहाँ नहीं हो पाता, और समटाइम्स किसको कितना टाइम दिया, तो वो चीज एक बार वहाँ पे हो जाती है क्योंकि नहीं आप नहीं, मैंने बताया ना, आंसर काउंट करो। मैंने बताया कि टाइम जैसे पहले देखो, बेस्ट में कितना लगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, वो भी पहले क्वेश्चन में, उसके बाद धीरे धीरे करके 13 मिनट, 14, 12 ऐसे आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चनों में जब आओगे तो 5 मिनट, 4 मिनट, ठीक है, क्योंकि उसमें नॉलेज भी वही है। और रही बात ऑलरेडी, मैंने बताया क्वेश्चन, फर्स्ट आवर में 5 क्वेश्चंस जो बेस्ट होंगे, सेकंड आवर में 7 क्वेश्चंस, और थर्ड आवर में 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो बहुत बोगस रहेंगे, हल्के फुल्के आते होंगे। देखो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन किसको आते हैं? किसी को नहीं आते, टॉपर को भी नहीं आते, पर एटलीस्ट जो बेस्ट में जो खींचता है नंबर, वही टॉप करता है। जो वीक क्वेश्चन है उसको लास्ट में लिया, और 10 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लिया, और बाकी क्वेश्चन मेरे आते हैं, मैंने अच्छा लिख दिया, नंबर आ जाएगा।
तो इसलिए लास्ट में थर्ड आवर में 8 क्वेश्चन मैंने बोला है कि उसमें भी कम से कम 2 या 3 वीक रहेंगे, लेस बहुत कम आएंगे, और एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा बिल्कुल नहीं आता है, तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। डिपेंड्स, अगर आता है तो कुछ लिख दो जो भी आता है, नहीं आता तो डजंट मैटर। मेरा ये कहना है कि नोन क्वेश्चन, जानने वाले क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन अगर लास्ट में तो छूटे नहीं, मालूम जो 17 18 19 यू नो, पर टाइम ही नहीं है, फिर तो बेकार ही हो गया ना। फिर तो क्या हो गया, आपने जो पढ़ा, जो आपने महीनों लगाया 3 क्वेश्चन पाने के लिए नंबर, वही छूट गया, तो आप तो बाहर हो गए। और जो आलतू-फालतू क्वेश्चन थे जिसमें 2 नंबर 3 नंबर मिले हैं, तो पूरा टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है जितेंद्र, आया क्लियर? जी सर। Okay, Monica, how to maintain regularity and consistency in revisions as I have reached the hitters club. इतना जल्दी? अभी तो एग्जाम बहुत, कितना है, अगस्त पूरा है, सितंबर में है ना। तो देखो, पहला चीज क्या है, रिवीजन वगैरह तो करते रहना है। अभी तो ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस जो जीएस का है, तो रिवीजन भी करना है। जब टेस्ट लिखना है तो रिवाइज कर लेना है, जब तक टेस्ट नहीं तो तब तक आप नया भी पढ़ लो, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। टेस्ट लिखना, मान लीजिए टेस्ट है संडे, तो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर यू राइट डाउन द टेस्ट। तो वो रिवीजन और नया पढ़ना चलता रहेगा। आई डिस्कस दैट आल्सो कि रिवीजन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। एक्टिव रिवीजन एंड पैसिव रिवीजन क्या था, और एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग क्या था, दोनों में डिस्कस किया है, तो उसको आप देख लीजिए, यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ आइडिया। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी। ऐसा नहीं कि मैंने बस यही बताया तो उसके बाद मेरे से बात नहीं करना है। यू कैन कॉल मी, टॉक टू मी, और पूरा डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा एनी डे। यू कैन कॉल मी अराउंड 9:30 से, नहीं 10 से 12 के बीच कर लो, है ना, नहीं तो रात में 6-7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, रात के 12 बजे तक, ठीक है। और ऐसे भी कर लो, मैसेज कर लो, टाइम ले लो, वट एवर, मैं हूँ, बस पे रहूंगा अवेलेबल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आप लोग टेस्ट नहीं लगा रहे हैं जो लोग, वो लोग टेस्ट लगाइए, राइट। जो लोग मेंस लिख रहे हैं स्पेशली, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। आप ही लोगों में से लोग निकालेगा रैंक, कोई बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। यही यही राजेंद्र नगर के लड़के निकलने वाले हैं, आप ही लोगों में से रैंक निकलेगा। और मेंस तो बहुत आसान है, अभी 2-3 क्लास में और स्ट्रेटजी बता दूंगा, आपको लगेगा कि भैया मैं सिर्फ रट लूं, स्ट्रेटजी से लिख दूंगा तो मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। आंसर कभी जनरल आंसर पे नंबर नहीं मिलते हैं। ऑलवेज विल गेट मोर मार्क्स, मैक्सिमाइज योर स्कोर राइटिंग द स्पेशलाइज्ड आंसर। जनरलाइज आंसर नहीं लिखना है, स्पेशलाइज्ड आंसर लिखना है, याद देखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और जनरलाइज आंसर कौन लिखता है? जिसको नहीं आता, तो वो लास्ट के क्वेश्चंस में होगा, तो जनरलाइज कुछ भी लिख दो। अच्छा, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी बताया, केस स्टडी में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि केस स्टडी सब न्यू है, सब पढ़ना पड़ता है, सब बराबर है। उसमें टाइम लिमिट देखना है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये केस स्टडी के लिए फिक्स है, केस स्टडी में कोई टूर नहीं है। हाँ, थ्योरी पार्ट के लिए, थ्योरी ऑफ द एथिक्स में, उसमें जो आते हैं पहले उसको कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जनरलाइज से हैं, पता नहीं क्या लिखना है, नहीं पता है, लेकिन सोचेंगे तो लिख पाएंगे। तो जो आते हैं, जो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से पूछ रहा है, वट एवर क्वेश्चन यू दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द बुक, जो आपको पता है, पहले वो कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन जनरलाइज है, जिसमें अपना दिमाग खुद से लगा के एग्जाम्पल सेट करके लिखना है, तो वो बाद में लो, ठीक है। ये चीज एथिक्स में कर सकते हो, पर पहले केस स्टडी करना। केस स्टडी बाद में क्यों नहीं कर पाओगे? कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप लिख रहे हो, आपने पहले एथिक्स का वो किया, थ्योरी पार्ट, तो 1.5 घंटे में थ्योरी हो गया। सेकंड 1.5 घंटे में आपने उठाया एथिक्स का वो केस स्टडी पार्ट, तो केस स्टडी में मे बी 3 केस स्टडी थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो चौथा और पांचवा छठा तक आते आते आपको छठे में लीजिए यू हैव लेसर टाइम। कैसे? आपको 10 ही मिनट बचा, अब 10 मिनट में पढ़ना भी है, लिखना भी है। मान लीजिए 2 केस स्टडी है और यू हैव जस्ट 20 मिनट्स या 18 मिनट्स, तो अब वहां थोड़ा स्ट्रगल हो जाएगा, कैसे पूरा होगा, है ना। तो जल्दी पढ़ोगे, जल्दी लिखोगे, और उसके मार्क्स भी ज्यादा है, सो थोड़ा सा वहां नंबर का दिक्कत हो जाएगा लेने में। कुछ तो जल्दबाजी में बेस्ट पॉसिबल जो आंसर होता है, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वो गड़बड़ा जाए। तो क्या करना है, केस स्टडी पहले करना है। केस स्टडी कैसी होती है? मैथ्स की तरह होती है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या लिखना है। अगर आप थ्योरी चाहोगे तो अपनी मर्जी से, आपने पढ़ा थ्योरी, ये पूरा सीधे लिख सकते हो। मान एग्जामिनर बोला लास्ट 5 मिनट्स, तो लास्ट 5 मिनट्स में यू कैन अटेम्प्ट वन थ्योरी क्वेश्चन, वो जो 10 मार्कर है, वो पढ़ा आपने, लिखना शुरू, लास्ट 5 मिनट पूरा पूरा भर दोगे 2 पेज, पर लास्ट 5 मिनट्स बोलता है केस स्टडी बची है, अब केस स्टडी नहीं कर पाओगे, पहले उसको पढ़ोगे। जब इतना माइंड
जब टाइम कम होता है ना, तो ब्रेन आपका फंक्शन उतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा और आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। वहां से कॉपी करेक्शन शुरू हो गया तो आपका माइंड हो गया अरे मैं क्या पढ़ूं, छोड़ो, और आप पढ़ के भी कुछ नहीं लिख पाओगे। लेकिन थ्योरी में वहां से कॉपी लेकिन मतलब चालू किया लेना, आपके पास वो आएगा 2 मिनट में, तो 2 मिनट में भी आप एक पैराग्राफ लिख दो, है कि नहीं, राइट और रॉन्ग। इसीलिए केस स्टडी को पहले करना है, ठीक है, थ्योरी लास्ट में लाना। केस स्टडी बढ़िया से हो जाएगा, जो पूछा वो लिख दो, 20 नंबर का है, 12-13 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो है स्ट्रेटजी एसे का बताऊंगा, हाउ टू राइट एन वेरी गुड एसे इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ऐसे फिलोसफिकल भी और नॉर्मल वाला भी, जनरल ऐसे भी। एनी अदर क्वेरी हियर? ऑल डन? चलिए, ऑल क्लियर है। इसको सब फॉलो करना, आज जो बताया आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो फॉलो करेगा नंबर अपने आप बढ़ जाने हैं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, नोन क्वेश्चन अननोन क्वेश्चन का कोई ज्यादा वो है नहीं। बेस्ट वे है टू स्कोर और मैक्सिमाइज योर स्कोर, यूज दिस इन एग्जामिनेशन एंड स्कोर योर, मतलब मैक्सिमाइज योर स्कोर, ठीक है। नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं इससे, प्रोवाइडेड यू आर राइटिंग नॉट ए बोगस आंसर फॉर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। 2-3 लास्ट के तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे, और मे बी यू ट्राई टू फिनिश, जो भी टेस्ट लिखने लिखिए, कॉपी चेक कराइए, और इसमें सत्यजीत भी हेल्प कर रहे हैं, कोई और डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, आई विल आल्सो हेल्प, है ना। एक दिन राहुल को भी मैं कहूंगा एक क्लास ले लेगा आप लोग के लिए, एंड ही विल राइट मे बी सम कॉपीज भी चेक करेगा, एक बार आई डिस्कस हिम, एंड एक दिन हम उसको करते हैं, ठीक है। ठीक है, देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।